میرے بھائی، خداوند کی سلامتی، ہم یہاں اس کلاس کے بھائیوں سے بات کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایک اور گروپ ہے جو دوسری طرف ہے، اور برازیل اور بیرون ملک بھی. لیکن ہمارا پہلا لفظ بھائیوں اور بہنوں سے معافی مانگنا ہے، کیونکہ یہاں ایک بگل پھونکا تھا اور بہت سے لوگ چونک گئے تھے. کیا وہ نہیں تھے؟ لیکن دیکھو، جب آپ سن رہے ہیں تو یہ ہارن ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ایک ایسا ہارن سننے کی ضرورت ہے جو اس کا روحانی بغل ہے. تو یہاں لفظ، یہاں موضوع سور کے ارد گرد ہے. ٹرمپیٹ وہ آلہ ہے جو عہد نامہ قدیم میں استعمال کیا جاتا تھا، جسے ایکزوفار کہا جاتا تھا، جو کہ مینڈھے کے سینگ سے بنا تھا. اور مینڈھے کا سینگ وہ ٹونز دینے کے لیے تیار کیا گیا تھا، جو عام طور پر بادشاہ کی آمد پر لوگوں کی تفریح کے لیے ضروری تھے. اور لوگوں کو تیار کرنے کے لیے سب کچھ کے صرف وہی لوگ انگوٹھیوں کو جانتے تھے. جب موضوع آیا نئے عہد نامے میں، یہ پہلے سے ہی پرانے عہد نامے میں موجود تھا. وہی لفظ پرانے عہد نامہ کے دھاتی ترہی میں بھی موجود تھا، لیکن اہم ترہی جو ایکزوفار تھا، یہ ایک ساز تھا جو پادریوں نے بنایا تھا. اس لیے انہوں نے صرف مینڈے کا سینگ تیار کر کے کاٹا تھا. درج ذیل کہنے کے لیے، آواز دینے کے لیے، بھیڑ کا بچہ مر گیا ہے، لیکن وہ زندہ ہے جو روح کے دم سے تھا. بس خدا انسان سے اس کی روح کے وسیلہ سے برا، جو کہ یسوع ہے، کے ذریعے بات کرتا ہے. تو یسوع، وہاں کی شکل، روح کی پھونک، یسوع بول رہا ہے. انسان کے دل تک. لیکن میں یہاں ایک مشاہدہ کرنے والا ہوں. بھائی پادری نے یہاں پیشن گوئی کے نشانات کے بارے میں بات کی ہے، اور ہم یہاں ابتدائی طور پر کچھ پہلوؤں کو سیاق و سباق میں بیان کرنے جا رہے ہیں جو ان لوگوں کے لیے اہم ہیں جو ہماری بات سن رہے ہیں. بہت سے لوگوں نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ پیشن گوئی مارکر کیا ہے. ہم اس خدا کو دیکھنے جا رہے ہیں. وہ خود کو ظاہر کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو انسان پر ظاہر کرتا ہے مختلف طریقوں سے، لیکن اس کا کلام بائبل سب سے زیادہ ہے. عملی انسان کو جاننے کے لیے خدا اس سے کیا کہنا چاہتا ہے، تو بائبل کی پوری کہانی انسان ہے. انسان اور خدا، وہ آدمی جس نے غلطیاں کی، وہ آدمی جس نے اسے درست کیا، آدمی کو اس کی غلطیوں کے ساتھ معاف کرنے والا آدمی، یہ سب کچھ بائبل میں موجود ہے. یہ لوگ ہیں. لہذا خدا کسی بھی شکل و صورت میں نہیں شرماتا. آئیے انسان کو رکھنے سے کوئی عجیب طریقہ نہیں کہتے ہیں. اس کی غلطیوں کے ساتھ، اس کے نقائص کے ساتھ، یہ بائبل میں موجود ہے. یہ بتانے جا رہا ہے کہ انسان کون ہے. یہ ہم ہیں، لیکن چلتے ہیں جب خدا وہی کے ذریعہ انسان سے بات کرتا ہے. وہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے جس کی پیشن گوئی کی گئی تھی. تو یہ بائبل میں ہے، اس کی پیشن گوئی کی گئی ہے. تو بائبل کیا وہ کتاب ہے جس میں عہد نامہ قدیم ہے، نیا عہد نامہ جس نے بائبل لکھی ہے؟ انسان روح القدس سے متاثر ہے، لہٰذا آپ کو صرف وہی معلوم ہوگی. اگر روح القدس اسے آپ پر ظاہر کرتا ہے، سمجھیں کہ اگر وہ نہیں کرتا تو آپ کے پاس خط رہ گیا ہے. اور بائبل کہتی ہے کہ خط مارتا ہے جو زندگی دیتا ہے وہ روح ہے. لہٰذا یہ آپ کا انحصار ایک ایسے خدا پر ہے جو خود کو ظاہر کرتا ہے. اگر وہ خدا اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا ہے، خدا کی کیا بات ہے؟ کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ ہم یہاں اپنے بھائیوں اور بہنوں، اپنے دوستوں کے لیے مسائل پیدا نہیں کریں گے جو یہاں موجود ہیں لیکن نظر آتے ہیں. یہاں وقت ایک سوال ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. انسان کا وقت کرونوس ہے، یہ گھڑی ہے. صدیاں، سال، زندگی، نظام الاوقات، گھنٹے، ہفتے، تو یہ انسان کا وقت ہے.
खुदा का वक्त केरोस है, ये हमारे वक्त को निशान जिद नहीं करता है। हम यहाँ क्रोनोस वक्त के जरिया निशान जिद नहीं हैं। क्रोनोस के वक्त में हम ईसाइयत में तकरीबन 2000 साल हैं, क्योंकि ईसाइयत सिर्फ 33 साल में शुरू हुई है। ठीक है, हम अगले साल 33 तक 2000 मुकम्मल करने जा रहे हैं। लेकिन देखो, खुदा अपने वक्त में इंसान से बात करता है, उसे किरुस कहते हैं। यूनानी लफ्ज कैरोस, क्रोनोस इंसान का वक्त है, इसलिए वो पिमाइश करता है कि वो इस वक्त के अंदर बोलता है, वो जो चाहता है करता है। लेकिन मैं कहूंगा कि खुदा कैरोस है। इसीलिए जब आप हमें नाम के साथ एक उदारे में लेकर आए थे, तो हमें पैगंबराना पहलू के हवाले से बहुत तशवीश हुई थी। मरानाथा कि आप हमें एक मेंडेट के साथ लाए हैं, ताकि हम जिस लम्हे में रह रहे हैं उसे सुनने और जानने की हमेशा बड़ी फिक्र ला सकें, और उस लम्हे को जानना जिसमें हम रह रहे हैं, लिहाजा हम यहाँ हैं। हमें ये जानना होगा कि हम किस लम्हे में जी रहे हैं। मसाइल का तज़क्कुरा दीगर तरी मसाइल में क्या गया है, क्या वो नहीं। दुनिया अपनी बड़ी मुश्किलात के साथ वादी में है ना, फैसले की वादी में कई। वो इबारत जो पढ़ी गई, इंसान को नहीं मालूम कि वो किस रास्ते पर जा रहा है। वादी वही है, चलो कहीं गहरी जगह निकलना चाहते हैं, लेकिन घेरे हुए हैं। तमाम लोग घेरे हुए हैं। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि सबकी अपनी बाड़ें हैं ना, और बाढ़ भी। लेकिन यहां देखो, ये बहुत जरूरी है। तुम समझते हो कि बाहर निकलने का रास्ता है, इसलिए ये दिखाया गया कि आदमी फैसले के काबिल नहीं है, लेकिन जो रब का नाम लेता है वो नजात देता है। इसलिए उसकी रहमत के मानी में हमेशा खुदा का कलाम मौजूद है। वो इस तरह काम करता है। इसराइल वो कहता है कि मैं इसराइल से प्यार करता था, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैंने उन्हें जिंदगी का पानी दिया, लेकिन वो नहीं चाहते थे, उन्होंने अपने लिए हौज खोदे। लेकिन एक मुशाहिदा, जब आप इसराइल के बारे में बात करते हैं तो आप इसराइल के बारे में बड़ी तरह से बात कर रहे हैं। लेकिन इसराइल से भी बदतर ईसाइयत है, क्योंकि इसराइल को रूहुल कुद्स के साथ बपतिस्मा की बरकत नहीं थी, रूहुल कुद्स का कोई नजूल नहीं था। और चर्च ने पेंटिकोस्ट को जाहिर करना था कि ये शरीयत के मुताबिक नहीं जीता, रूह के जरिए जिंदा रहता है। तो ये नहीं है, ये सिर्फ इंसानी साख्त नहीं है, ये इंसानी साख्त है, लेकिन उसका सिर होना जरूरी है। एली कौन है? खुदावंद यस्वा कौन है जो अमल करता है उसकी अपनी रूह से? चलो, तो आज हमारे पास एक लफ्ज है, ये है बिगावत में दुनिया। फिर कहोगे बगावत, ये बगावत है। हबकुक नबी 700 रहते थे साल पहले। यस्वा और आप पुराने अहद नामे में वहां जाते हैं, वो आपको दिखाएगा इंसान की 3 अजीम बगावतें। अहम तो हम देखेंगे मिसाल के तौर पर हबकुक 2:7 खानदान। और हबकुक के वजन में मैं घरों को मुसीबत में देखता हूं। वो हमारे दिन की बात कर रहा है, घर मुसीबत में है। बच्चों शादी, हमें उससे निपटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक को अपनी छोटी छोटी परेशानी होती है। तो आपको थोड़ा सा मसला नजर आता है, कभी कभी एक छोटा सा से बड़ा नहीं है ये। लेकिन यहां देखो, हर एक का खानदान है। तो वो ये कहता है घर मुसीबत में है। और ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त इस तरह कहते हैं, बाप के खिलाफ बेटा, बेटा बाप के खिलाफ, सास बहू के खिलाफ। सास कोई मसला नहीं है, अभी नहीं। यस्वा ने पहले ही कहा था कि लेकिन चलो, क्योंकि ये हमारा मौजू नहीं है। हुकूमत के खिलाफ, तो दुनिया हुकूमत के खिलाफ है। आप जो चाहें कर सकते हैं। गवर्नर साहब आप जो चाहें कर सकते हैं। हर कोई आपके खिलाफ है, समझो। इलेक्शन के वक्त इसलिए नहीं कि मैं उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि वो ऐसा है, आप सब कुछ करते हैं।
क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं करते अगर मैंने आपकी कभी किसी चीज में मदद नहीं की है। ऐसा नहीं है, कभी कभी आपसे यह सवाल होता है, लेकिन यह दुनिया अपनी नाशकरी के साथ है, इसके बगावत के तरीके के साथ तो बगावत की दुनिया है। ये घर में बगावत में है, सियासत में बगावत है, हुकूमत में मेरा मतलब है कि हुकूमत करने वाला कोई नहीं है, ये मौजूद नहीं है। तो बगावत में एक दुनिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बगावत का बदतरीन मकाम कहाँ है? मजहब में। मजहब, जब आप मजहब को देखें तो दुनिया में उससे बदतर कोई चीज नहीं। आपको मजहब जैसी कोई चीज नजर नहीं आएगी। हर चीज जो जंग है, हर चीज जो एक मसला है, मजहब दरमियान में है, तो ऐसा नहीं है। फिर आप हमारे मजहब से पूछें, क्योंकि हम खुदा के मालिक हैं, यही मसला है। जो मजाहिब खुदा के मालिक बन गए हैं, क्या आप समझते हैं इसके बारे में कहने को कुछ नहीं है सिवाय उसके मजहब ही के बारे में। क्योंकि जब मैं खुदा को मेरा मजहब समझता हूं तो मैं गैर मौजूं सलूक करता हूं और मेरी वजह से हर कोई खुदा से नाराज हो जाता है। इसलिए आज मजहब ही उसकी वजह है कि लोग खुदा से नफरत करते हैं। हम आपको दिखाएंगे तकसीम जो हम देख रहे हैं। मैं दूसरे मजाहिब के बारे में बात करने वाला नहीं हूं। मैं यहां हूं, मैं एक ईसाई हूं। मैं यहां अपने उस कारोबार के बारे में बात करने जा रहा हूं। यहां ये पेचीदगी है, क्या ईसाइयत के नाम पर ईसाइयत का वजूद है? वहां है, लिहाजा ईसाइयत का हिस्सा है। कुछ ऐसे हैं जिनका बाइबल से कोई ताल्लुक नहीं है और कुछ नहीं है, कोई अज़म नहीं है, लेकिन ये ईसाई है। ये सब ठीक है, हमारे पास मरम्मत करने के लिए कुछ नहीं है। इंजील मुख्तलिफ है। इंजील यस्वा की तरफ से है और उसका अहद है कि जो ईसी के साथ है, और ये रूहुल कुद्स है जो अंजील पर हुकूमत करता है। ये इंसान नहीं है। तो जब वो कहता है कि ये इंसान नहीं है, यहां घबराएं नहीं। मैं किसी लीडर के बारे में बरा नहीं कह रहा हूं, और न ही हमें इस बात की फिक्र है कि आज हमारी तशवीश ये कहना है कि हम जिस पैगंबराना लम्हे में रह रहे हैं और हम उसके बारे में क्या करने जा रहे हैं। सवालात मौजूद हैं, कई सवालात, जैसे ये कैसा होगा, कौन हमारी मदद के लिए आएगा। एक सवाल मैं आखिरी वक्त तक छोड़ूंगा, लीडर्स। हमारे लीडरों से बदतर कोई और नहीं है। यहां हमारे लीडर नहीं हैं जिनके साथ हम रहते हैं, वो जो पूरी दुनिया को डिक्टेट कर रहे हैं। और वो कत्ल आम की कोई बात नहीं करते। आबादी, जैसा कि हिटलर का मामला था, जैसा कि मुसोलिनी, कजाफी और देगर का मामला था। तुम्हें पता है क्यों? वो भूल जाते हैं कि वो मरने वाले हैं। यही सब कुछ हुआ है। अजीम बगावत, जब खुदा ने इंसान को बनाया, सांप है और कहता है यहां देखो, मेरी बात सुनो, हवा चम। खुदा आपको धोखा दे रहा है, क्योंकि अगर आप उसकी नाफरमानी करते हैं तो आप हो जाएंगे। अच्छाई और बुराई के बारे में जानना और कुछ और। आप खुदा के बराबर होने जा रहे हैं और आप मरने वाले नहीं हैं। ये वही है जो उसने झूठ बोला, जो उसने अजीम रहनुमाओं में डाला, और मैं उसे यहां अपने भाइयों, हमारे दोस्तों को दिखाने वाला हूं। आइए देखते हैं कि आया हम यहां ऐसा कर सकते हैं। खुदा के खिलाफ एक मुस्तकिल बगावत है जो पूरी दुनिया है। ये मजहब से भरी हुई है, लेकिन अचानक वो मर जाता है। बस उसे अब कुछ नहीं चाहिए, उसे अब खुदा नहीं चाहिए। उसका मसला है हल किया जाए, और ये आदमी है, ये फलसफियाना है, ये कांट था। वो दूसरा आदमी था जो वहीं मर गया था। नीत्शे तुम्हारा एक दोस्त था जिसका तुमने जिक्र किया था। तो 10 साल मरने से पहले पागल खाने में वो सबको उसूल दे रहा है, खुदा मौजूद नहीं है। ये इंसानियत है। ये वही है जो फलसफा की तबलीग करता है ना? हम फलसफे के खिलाफ नहीं हैं। फलसफा साइंस है और हम साइंस का एहतराम करने जा रहे हैं, और हमें ये पसंद है। फलसफा दलक्ष है, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ता। और मजहब ने फलसफा लेकर फेंक दिया। दरमियान में यह फलसफियाना अकीदे का जवाब पेश करने के लिए, और फलसफियाना अकीदा यह है कि यह कांट का है, यह नत्शे का है,
یہ کیرکیگارڈ کا ہے, یہ ٹلمین کا ہے, یہ برونر کا ہے, یہ شلٹس کا ہے. تو ان میں سے ایک سلسلہ الہیات کے ماہرین, اور یہ بہت مضبوط ہے کہ ماہر الہیات اس حد تک چلا جاتا ہے کہ ایک کتاب لکھتا ہے کہ خدا مر گیا ہے. کیا آپ دین کی اس صورتحال کو کچھ سمجھ سکتے ہیں؟ مذہب بغاوت میں ہے, مرد بغاوت کر رہے ہیں, اور میں یہاں پر جاؤں گا تھوڑی دیر میں. پریس کیا کہہ رہا ہے وہ سب وہاں موجود ہیں اور وہ اس کے ذمہ دار ہیں, اور میں یہاں سارا الزام ان پر ڈالنے جا رہا ہوں کیونکہ ان کا آج یہاں ہونے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا, لیکن وہ میرے دوست ہیں. میں ان کے لیے تھوڑا سا جوس لے کر جا رہا ہوں, ایک چھوٹا سا چکن, لیکن چلو, لیکن ہم بہت اچھی طرح سے ملتے ہیں. پریس ضروری ہے. میں مصیبت کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں پریس کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو میرے بھائی سمجھتے ہیں. وہ نیوز بوائے کے بارے میں بھی بات نہیں کر رہے ہیں, میں صحافیوں کی بات کر رہا ہوں. اس لیے میرے لیے نیوز بوائے اور صحافیوں میں بڑا فرق ہے. دبائیں, یہاں ہمارے پاس وہ نہیں ہے. خدا کا شکر ہے کہ وہ یہاں آئے ہیں, وہ کھلے دل کے ہیں, اور ہم ان پر اعتماد کر رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور میں انہیں یہاں دکھانے جا رہا ہوں. ہر کوئی جو یہاں ہے, یہ پڑھنے سے پہلے کہ پریس دنیا بھر میں کیا کہہ رہا ہے, نہ صرف یہاں برازیل میں. ہم پیشن گوئی کے لمحے پر ہیں. یہاں دیکھیں, جہاں پہلے ہی ایک حکومت کی پیشین گوئی ہے. دنیا بے چین ہے. کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی کسی حکومت پر یقین نہیں رکھتا. میں یہاں اپنے گورنر کے بارے میں بات کر رہا ہوں, یا جو میر یہاں ہیں. ہم یہاں عام طور پر بات کر رہے ہیں, ہم عالمی سطح پر بات کر رہے ہیں. دنیا کوئی نہیں مانتا, کوئی بھی پیار نہیں کرتا, نہیں. سیاسی نظام کوئی نہیں, لیکن یہ مسلط ہے. اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ آپ اسے یہاں رکھ سکتے ہیں, اسے یہاں بھیجیں کہ ہر ایک دانیال کا مجسمہ دیکھے جو اس وقت کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی. ایک خواب جو نبوکدنضر نے دیکھا تھا, اور نبوکدنضر دانیال کو بلایا. نبوکدنضر اس مجسمے کی پہلی عظیم سلطنت تھی. دوسری سلطنتیں موجود تھیں, آشوری, عظیم کردار جیسے ایشور بانی پال, اسرادان, پھر سنجیدہ غیر معمولی آدمی. لیکن وہ وقت شمار نہیں کیا گیا. آپ نے گننا شروع کر دیا. آپ نے کہا میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آدمی کیا ہے اور حکومت میں کیا ہے. انسان کی حکومت میں کون ہے؟ یہ دلچسپ ہے کہ جو آدمی کو ذمہ دار بناتا ہے وہ کہتا ہے وہ تم مرنے والے نہیں ہو, لیکن وہ چاہتا ہے کہ مرد مر جائیں, کوئی حکومت نہیں. خود کو برقرار رکھا ہے کیونکہ حکومتوں کا مالک وہ بدلتا رہتا ہے, انسان کو لے جاتا ہے, اسے یرغمال بناتا ہے, اسے طاقت سے بھر دیتا ہے. یہ یہاں میں ان طاقتوں کی بات نہیں کر رہا جو اقتدار چاہتے ہیں, نہیں, میں اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں. میں انسان کی بات کر رہا ہوں جس میں ہم سب کچھ زیادہ تھوڑا کم حصہ ہیں, لیکن یہ سب ایک ہی چیز ہے, وہی ماس ہے, غلبہ حاصل کرنے کی خواہش. لیکن غلبہ حاصل کرنے کی انسان کی خواہش اس بات میں ہے کہ مجسمے کے پیچھے کون ہے. دانیال کے مجسمے میں یہ نبوکدنضر کہتا ہے جو پہلی عظیم سلطنت تھی, نہیں, کوئی تجھ سے برتر ہے کوئی نہیں, اسی لیے مجسمے پر سونے کا سر ہے. لیکن پھر نبوکدنضر سب سے بڑی خوشی میں تھا. لٹکتے باغات, پھر لوگوں نے دارا کو دیکھا, ایک فارسی تمغہ. دارا وہاں جاتا ہے, خود مجسمے کا مالک. دارا وہاں جاتا ہے, نابوکو کو اکھاڑ پھینکتا ہے. وہاں جا کر اس نے دنیا سیکھی. تب سے اس نے بہت سی چیزیں سیکھیں, انتظامیہ کیا ہوتی ہے. دوسرے نے خوبصورتی کی قدر کرنا سیکھا, جنگ لڑنا سیکھا. تیسرا پاگل آیا 12 سال کی عمر میں, الیسنڈرو. میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ 12 سال کی عمر میں ایک شہنشاہ تھا. 12 سال کی عمر میں وہ شہنشاہ تھا. مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا تھا. 12 سال کی عمر میں اس نے پوری دنیا پر تسلط قائم کیا.
सिर्फ फिलिस्तीन में उसने 50 से ज्यादा क़याम किया। शहर नाकाबिल यकीन घोड़े पर, अब भाई उसे हवाई जहाज में तस्वर कर रहे हैं। उसने पूरी दुनिया पर गलबा हासिल किया। इनकी वजह से पूरी दुनिया में यूनानी बोली जाती थी। तो ये क्वीन है जो कि बाइबली यूनानी है, फलसफियों का शकरिया क्लासिकी यूनानी नहीं। आप फलसफियों आपका शकरिया तो उसे चेक करें। मुजस्मा वहां है। दूसरी सल्तनत यूनानी मकदूनियाई, तीसरी सल्तनत हम यहां ग्रीको मकदूनियाई देखेंगे, फिर माजिरत रोमन, और मुजस्मा सिर्फ ख्वाब में खड़ा है। ये एक आदमी का एक अच्छी तरह से बनाया गया मुजस्मा है, लेकिन ये पांव है जो मसिला है, मिट्टी और लोहे का मरकब। मगरिब कभी भी मशरिक के साथ मुत्तहद नहीं होगा। सियासत, दुनिया तकसीम है, मिट्टी और लोहा खत्म हो चुका है, तो जो मिट्टी के हक में है भरोसा कर रहे हैं। क्या मैं जिनके पास है लोहे, वो जमीन पर हैं, फिर थोड़ा सा आता है जमीन पर, और वजन में एक पत्थर हाथ के बगैर फेंका जाता है। ये मुजस्मे से टकराता है और मुजस्मे को गिरा देता है। ये वो लोग हैं जो हुकूमतों पर भरोसा करते हैं, वो लोग जो इंसानी क़ियादत पर भरोसा करते हैं। बहुत अच्छे लीडर हैं। शायद आपके पास रूस में एक मिसाल है, मैं उनका नाम प्यूटन का भी जिक्र करने जा रहा हूं। उनके पास वो तमाम मुश्किलात हैं, लेकिन वो अपने घर के पिछवाड़े को बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन वो एक अजीम रहनुमा है। आपको मगरिब मिल गया, मगरिब के लीडर कहां हैं? सब कुछ एक दूसरे का पीछा कर रहा है। यहां डॉलर बदल रहा है, निशान बदल रहा है, पता नहीं क्या, वो सब कारोबार, सब डरते हैं। कोई भी कुछ फर्ज नहीं करता। आप एक ऐसे रहनुमा पर भरोसा कर रहे हैं जो हम देख रहे हैं। आज एक चर्च के तौर पर हमारी बड़ी फिक्र खुदावंद पर भरोसा करना है। इसका आना करीब है जो हम देख रहे हैं। चलो मायूस हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। यही वजह है कि सुअर एक सुअर है और पार्टियां जबकि सुअर फूंकता है, वहां के मसले के लिए हमें उससे निकलना है। क्या ये नहीं है? और जब हम देखते हैं कि नरसंगा फूंका जा रहा है, चर्च की ईद करीब आ रही है, हमारी उम्मीद, हम किससे उम्मीदें लगा रहे हैं? जी हां, आइए हुकूमतों की मदद करें, फितरत की मदद करें। ये खत्म हो रही है, लेकिन हमें अपनी हर मुमकिन कोशिश करनी है, क्योंकि ये वो जमीन है जो रब ने इंसान को दी है। लेकिन उसने हमें एक और जमीन दी है जो अब्दी है। लेकिन मैं यहां वापस आने जा रहा हूं। मैं डेनियल के मुजस्मे को छोड़ने जा रहा हूं ताकि ये कहूं कि ये हुकूमत जो आज तक गालिब है, जब आप रोमन एम्पायर कहते हैं, शामिल जिस वक्त में हम जी रहे हैं, इस सब के नताइज, क्योंकि उसने दूसरी सल्तनतों से अपने पास मौजूद सब कुछ छीनकर रोमन एम्पायर में फेंक दिया। रोमन एम्पायर फिर एक जहनियत बन गई, एक सकाफत, और ये जहनियत और ये सकाफत, सियासत, मजहब जो आज दुनिया पर हावी है। बिलाशुबा हमारे खिलाफ कुछ नहीं है। वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, उनका दिमाग क्या सोचता है, लेकिन एक बात वाज़ेह होनी चाहिए, दुनिया तकसीम है। ये तकसीम है, उसे बागियों के एक गरवा ने तकसीम किया है, और बदतरीन बगावत मजहब में है। क्यों? आइए देखते हैं कि हमसे पहले पादरी ने क्यों कहा, मजहब ने हमें कुछ छोड़ दिया है। पेंटिकॉस्ट, जो कि कलीसिया पर रूहानी तौर पर हुकूमत करने के लिए रूहुल कुद्स का नाजिल होना था, आपको रूहुल कुद्स नहीं चाहिए। हुकूमत चलाएगी, ये काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप जानते हैं क्यों? गिरजा घर बंद हो रहे हैं, जश्न मनाने की जगह बन रहे हैं। लोगों ने जमाने को छोड़ दिया है। एक लम्हे में मैं आपको यहां दिखाने जा रहा हूं कि अखबारात कह रहे हैं, वहां के सहाफियों, आप उन पर इल्जाम लगाने जा रहे हैं। तो एक नजर डालें,
वो ताकत जो मुजस्मे के पीछे है, ये अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये मजहब पर भी हावी है, ये जहनियत पर हावी है। आज दुनिया कह रही है कि ये बाएं तरफ है, ये दाएं तरफ है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चर्च वफादार है, ये जहां भी खुदा की मर्जी उसके लिए है। वो वक्त जो इसका इंतजार कर रहा है। और बाइबल का मतन कहता है कि जब चीजें यहां हो रही हैं, ऊपर देखो, क्योंकि तेरा फदिया करीब है। चीजें मुश्किल हैं, लिहाजा अगर आपकी रूह खुश है तो हल्लू जगाए। अगर मुसीबत आसपास है, हल्लू जगाओ और हम इससे गुजरेंगे। यहां हमारा लफ्ज उम्मीद का लफ्ज है, ये हौसला का लफ्ज है, ये वही है जो हम अपने तमाम भाइयों और बहनों के दोस्तों के लिए चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हूं। हम दुनिया से वो बात कर रहे हैं जो मैं सोचता हूं, मेरे ख्याल में नहीं, आप वही कहने जा रहे हैं जो हम यहां कह रहे हैं। अगर आप इत्तिफाक करते हैं, आप दूसरों की मदद के लिए ये कहने जा रहे हैं, दुनिया मायूस कुन है, चक्कर आना, क्योंकि एक अकलियत, हर कोई कारकुनों से डरता है, सियासतदान कारकुनों से डरता है, हुकूमत डरती है, प्रीस डरता है, कंपनी नहीं। लेकिन देखो, हम सिर्फ वही हैं जो खौफजदा नहीं हैं, क्योंकि वो कारकुनों को पसंद करते हैं ताकि वो शाये कर सकें। ये वो कारकुन हैं जिन्हें स्कूप मिलता है तो आप देखते हैं। ये दुनिया की सूरत हाल है। ये नहीं जानता कि ये कहां जा रहा है। मैं आज आपको यहां दिखाना चाहता हूं। इस मौजू के बारे में बात करने से पहले जो इस ज़बूर के बारे में मुख्तसर होगा, जिसे हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, मैं मतन में नहीं गया, लेकिन दोपहर का खाना है, मैं उसकी जमानत देता हूं। लोग यहां से मायूस नहीं होंगे। तो हमारे यहां टेलीविजन का कुछ वक्त है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये पहले ही खत्म हो चुका है ना? नहीं, लेकिन हम यहां अपने भाइयों पर हमला नहीं करने वाले हैं, तो चलें। इसलिए मुजस्मे में जो ताकत है वही है जो बाइबल में बयान की गई है। सल्तनतों के, क्योंकि उसे एक मकसद पूरा करना है, जो क्या है? ये अक़वाम का गलबा है, जो इंसानी हुकूमत पर आखिरी फैसला होगा। आखिरी बात गोश्त के बारे में है, जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। और दूसरा आखिरी फैसला इंसानी हुकूमत पर है, क्योंकि ये यस्वा ही है जो 1000 साल कायम करने वाला है, और वो इसमें शिरकत करेगा। इंसान अपनी मुश्किल में, क्योंकि इंसान किसी हुकूमत को कबूल नहीं करता, कोई नहीं, वो जो चाहे कर सकता है, वो किसी हुकूमत को कबूल नहीं करता। गुजरते हुए यकीनन हम बात कर रहे हैं, कुछ जगहें मौजूद हैं, क्या वो नहीं फर्क, लेकिन दुनिया के सिलसिले में ये वहां है, यही हकीकत है। आइए दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं, जो हमारे दौर का मजहबी, सियासी और समाजी पहलू है। चलो बाइबल पर चलते हैं, हम यहां चीजें नहीं बना रहे हैं। मुकाशफा की किताब चरच के 7 उद्वार की तारीखी और पेशन गोई की वजाहत करती है। ये एफिसस से शुरू होती है, जब इब्तिदाई कलीसिया था, और 16वीं सदी में मजहबी इस्लाह आई। हर चीज एक तारीखी और पेशन गोई का मंसूबा है। क्या आप जानते हैं कि आखिरी चर्च क्या है? क्या आप जानते हैं कि चर्च क्या है? हम जिस दौर में हैं, ये आखिरी चर्च है, सियासी, समाजी, और वो पेशन गोई है। लिहाजा लफ्ज लाउदीसिया यूनानी लाओस के 2 अल्फाज से आया है, जिसका मतलब है लोग, और डिकायोस जिसका मतलब है इंसाफ। तो आज की दुनिया लोगों के इंसाफ की दुनिया है, यानी अवाम ही इंसाफ करने वाले हैं। जो इंसाफ लाता है वो सब कुछ बदल देता है, कवानीन नहीं। The
कैमरे, लेकिन ये लोग हैं और इन लोगों में पागल लोग हैं और दीवाने यहां चीखते हैं, बाकी सब चुप करते हैं अच्छे वालों को। थोड़ी देर में सब पागलों से इत्तेफाक करते हैं, हाँ नहीं मुझे लगता है कि वो सही है, वो उसे दोहराता है, वो उसे दोहराता है, और पागल लोग उसी के लिए होते हैं और वो हर जगह होते हैं। हमारे दरमियान भी हर खानदान में एक पागल शख्स होता है। फिर वो शख्स कहता है नहीं मेरा खानदान ऐसा नहीं करता क्योंकि तुम पागल हो। तो मैं उसे यहां देख रहा हूं, हमेशा एक होता है, सब जानते हैं कि, लेकिन उसके बाद मेरे भाइयों ये यहां है। सबसे पहले सियासी पहलू है, लाओस तो मजदूरों के हुकूक जो आए, ठीक है मैं यहां ब्राजील के लिए गेटोलियो वर्गास गया, पूरी दुनिया के लिए इसलिए लिबरलिज्म आया। ये एक बहुत अच्छा सियासी हक है, लेकिन ये एक दरियाफत था, ऐसा नहीं था। लेकिन आज ये सिर्फ आम हुकूक के बारे में नहीं है। आम तौर पर ये यहाँ एक छोटे से गरवा का हक है, दूसरे यहाँ खुद को दूसरों पर मुसल्लत करना, क्योंकि ये एक्टिविज्म नहीं है, ये उसकी एक शक्ल है। हम एक्टिविस्ट के खिलाफ नहीं हैं, हम उसके खिलाफ हैं जो हमारे खिलाफ आता है। हम किस चीज के लिए खड़े हैं, बस यही है कि वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे करते हैं, हक है। ये एक्टिविज्म का हिस्सा है। हम कारकुनों से खुश हैं और दुनिया के साथ जैसा कि ये है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये दिखाने के लिए क्या जरूरी है कि दुनिया वाकई पागल है। आपने फर्क किया, वरना आप नहीं आएगा असल में मजहबी पहलू पर। क्या मुश्किल है, अपोकलिप्स दिखा रहा है। अब एक चर्च है जो बड़े मोमिनों के बारे में बड़ा बोल रहा है। क्या ये नहीं है कि इनमें से कुछ यहां हैं, शायद मैं भी, लेकिन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप कहते हैं कि ये अमीर है, ये अफजूदा है, ये किताब में मौजूद है। लाउडिकिया, मैं अमीर हूं, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, और पेशन गोई का लफ्ज आता है, लेकिन तुम नहीं जानते, तुम भूल गए, रसवा हो गए। फिर मैं कहता हूं कि देखो गर्जा घर पर खुदा के हाथ की तरफ। अफसोसनाक ये है नजरिए की हालत, खिस्ता हाल। देखिए ये डॉक्टर का वहां का हाल है, इसका नजरिया कुछ नहीं कहता, इसके पास किसी से कहने को कुछ नहीं, ये सिर्फ बकवास है, सिर्फ हमाकत है, इसे काम करने को कहता है लेकिन वो खुद नहीं करता। गरीब इंधा नबी है, वो वहां है, सब्ज नंगा। एक अंजीली बशारत किसी की जिंदगी नहीं बदलती, ईसाईयत किसी की जिंदगी नहीं बदलती। अब यहां एक आध माफी मांग लेते हैं। अगर आप दूसरे मजहबी गुरुओं को लेते हैं, इखलाकी तौर पर जो मुसल्लत किया जाता है वो ऐसी चीज है जो हमारे लिए मौजू नहीं है। औरत को पहनना, बुर्का पहनना, सिर्फ 2 आंखें निकालना। यहां से मुझे लगता है कि मैं 99% चला गया था। हर नेमत के साथ ये ईसाईयत है। समझो, हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि यहां हमारा क्या है, यहां का कारोबार क्या हम नहीं हैं, और कहते हैं कि ईसाईयत क्या कर रही है, ये बहस कर रही है, मजहब बहस कर रहा है। इत्तिफाक राय के साथ जो चीज जिनसी है उसमें तो एक और मजहब है जो ईसाईयत से लड़ रहा है और वो जीतने वाला है, वो जीत रहा है। मंदिर तबाह हो रहे हैं, बीचे जा रहे हैं, लोग चले गए हैं, वो एक बड़ी बटालियन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सब कुछ तैयार किया जा रहा है और मैं यहां से थोड़ी देर के लिए जा रहा हूं, खत्म करने के लिए, ताकि आपको मालूम हो जाए कि दुनिया की सुरक्षी खुदा के खिलाफ कौन है। मजहब आज दुनिया की बगावत, खुदा के खिलाफ एक दुनिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि शुरू से आदम और हवा ने बगावत की। मैं अपनी जिंदगी में खुदा को नहीं चाहता। आप एक मतन देखने वाले हैं, हम जबूर में एक आदमी को देखेंगे जो खुदा को अपनी जिंदगी में नहीं चाहता। उसने इनकार कर दिया कि मैं अमीर हूं, मजहब का क्या होगा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, कीमत अदा की है। और इस तरह, और वो उसे नहीं जानता,
वो एक बदबख्त दिक्खी गरीब अंधे और नंगे को भूल जाता है। और मैं तुम्हें यहाँ दिखाऊंगा कि मजहब के लिए, इस किस्म के मजहब के लिए नताइज अच्छे नहीं हैं, क्योंकि एक फैसला है और मैं जा रहा हूं लाइन से हटकर, और मैं अपने मुतरजमीन से माजरत खवा हूं। उन्होंने भी वसूल किया और नतीजा देखो, इस बेवफा चर्च को मुस्तरद करने और बगावत की जिसके यहां बहुत से लोग हैं, मैं यहां तक के कर सकता हूं जो मैं पसंद नहीं करूंगा, लेकिन बेवफाई खुदा कबूल नहीं करता। क्या आप उसे वही में देखना चाहते हैं? क्या हम कयामत में जाएंगे, आप कहां हैं? क्या आपको टेकस्ट कट मिल गया है? सिर्फ लफ्ज बोलो तो चलते हैं। पहला, आइए पहले पढ़ें कि हमारे जहन में क्या है। वहां ईसाइयत का चर्च है, मैं खुद उसे पढ़ने जा रहा हूं क्योंकि मेरी उम्र 92 साल है, मेरा सिर अब इतना अच्छा नहीं है। बेवफा ईसाई चर्च जवाल के आसार का सामना करना पड़ा है। यहां देखो, यहां खुदा की तरफ से फैसले के तौर पर मुकाशफा की किताब में पेशन गोई की गई है, वही रद्द जो खुदा को इस मजहब के लिए है, और ये मजहब इंसानों के लिए है। इस्राएल को भी था और आज तक पूरी दुनिया इस्राएल के खिलाफ लड़ रही है। क्या तुम जानते हो कि उसने मसीहा से बगावत क्यों की? और एक दुनिया है जिसने यस्वा के खिलाफ बगावत की, अब्दी जिंदगी के खिलाफ, नजात के खिलाफ। इंसान इस वक्त पर तौजा मरकूज कर रहा है कि ये सही है। हम उसके खिलाफ नहीं हैं, हम कह रहे हैं कि ये खुदा के मंसूबे के खिलाफ है। आइए वहीं पर एक नजर डालते हैं। अब भाई मेरी मदद करेंगे। वही 18:4 एक पेशन गोई हुक्म खुदा की तरफ से अपने वफादारों के लिए। आइए आखिर में शुरू करें, आइए उसे मेरे साथ पढ़ें। और मैं सुना, ये आसमान से एक आवाज थी कि ऐ मेरे लोगों, इसमें से निकल आओ, ऐसा न हो कि तुम उसके गुनाहों में शरीक हो जाओ। जो हम पढ़ रहे हैं मवाद गायब हो जाएगा और जदोजहद हर जगह है, तमाम मजाहिब, ताकि मवाद खो ना जाए, लेकिन ये आपको देखना चाहते हैं। वही 18:16 कितना माल हड़प होगा देखते हैं। मतन जो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं और कहते हैं, वाह वाह इस अजीम शहर को जो बारिक कितान में मलबूस थी। उसने ये कहने के लिए लिबास पहना हुआ था कि वो मुकद्दस है, ये कहने के लिए कि उसके पास रूहुल कुद्स है। ये सिर्फ लिबास है, उसने लिबास पहना हुआ था। यहाँ एक चर्च का लिबास पहना हुआ था जो कि खुदा की तरह दिखाई देता है, जो मुकद्दस नजर आता है, जो ऐसा लगता है रूहुल कुद्स। लेकिन यहाँ आप उसे पढ़ सकते हैं। आइए जारी रखें। माजरत जामनी सरख रंग के जामनी खुदा की शाही की बात करता है, सरख रंग यस्वा के खून की बात करता है जो बहाया गया था। ये चर्च जो इसके लिए बेवफा है, यहां देखो उसे वफा होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि नतीजा देखो। आप पढ़ सकते हैं, सोने, कीमती पत्थरों और मोतियों से मजीन, क्योंकि 1 घंटे में वो तबाह हो गए थे। मौती बचा रहे हैं, लेकिन बचाने वाला एक ही है। दौलत तबाह हो जाएगी। वो पहले ही शुरू कर चुके हैं। वो यहाँ एक मंदिर को पत्थर मारते हैं, वो वहां एक और को पत्थर मारते हैं। मैं यहाँ मुआवजा अदा करूंगा, मैं दूसरे को वहां अदा करूंगा, मैं ये यहाँ अदा करूंगा। लेकिन यहाँ देखो, जिसको मवाद पर भरोसा है, हमेशा की जिंदगी के लिए सामान जमा कर लें। अगर आपके पास छोटा सा घर है तो दूसरा खरीद लें। वहां हुकूमत बहुत सारी ऑफर्स दे रही है, जो कुछ हो सके करें। एक नई गाड़ी इलेक्ट्रिक, ये अच्छी बात है। 2, 3 कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मसला ये है कि अगर आपकी दौलत में इजाफा होता है, इसमें अपना दिल डालो, अपने दिल को इसमें मत डालो। ये सब ठीक है, लेकिन हमें अपनी जिंदगी की जरूरत है, क्योंकि ये खत्म होने वाली है और खुदा की फिक्र है ये जाहिर करने के लिए कि उसका काम रूह का है, न कि मजहब के खिलाफ तसादुम के लिए। और कहते हैं, और इसीलिए लोगों में रब के नाम की तौहीन की जाती है। क्या तुम जानते हो क्यों? क्योंकि एक कमजोर मजहब है, एक कमजोर ईसाइयत,
ایک عیسائیت جس کے پاس اب کوئی پیغام نہیں ہے, ایک عیسائیت جس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے, ایک عیسائیت جو روح کو کھانا نہیں دیتی. یہ ایک عیسائیت ہے جو صرف اپنے رہنماؤں کو کھانا کھلاتی ہے. اور یہاں تک کہ جب یہ اپنے لیڈروں کو کہتا ہے تو یہ عام نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے روزی کمانا چاہتے ہیں میرے محبوب. یہاں ہم پھر جاتے ہیں. یہ دین جو خدا کے خلاف بغاوت ہے اور دنیا مذہب کی وجہ سے خدا کے خلاف ہے, کیونکہ مذہب کے مالک کہتے ہیں کہ وہ مالک ہیں, لیکن جب وہ غلطی کرتے ہیں تو اللہ پر الزام لگا دیتے ہیں. اور یہی بڑا مسئلہ ہے. ہم اس سے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. قدرتی کیا ہے, یہاں میری پیروی کریں. 17 اور 13 دنیا کے ساتھ یہ اتحاد یہاں میرے ساتھ پڑھو, ایک ہی ارادہ رکھتے ہیں اور انہوں نے اپنی طاقت اور اختیار کو حیوان کے حوالے کر دیا. 1.5 منٹ یا 15 منٹ. چلو یہاں 4 پر چلتے ہیں. جھگڑا ہے, کیا ہم اسے پڑھیں گے؟ ہوسی 4:1. میرے ساتھ رب کا کلام سنو. تم بنی اسرائیل کے لیے رب زمین کے باشندوں سے جھگڑا کرو, کیونکہ زمین پر کوئی سچائی نہیں, کوئی وقار نہیں, خدا کا کوئی علم نہیں ہے. اس کے لیے ذمہ دار زمین پر خدا کا علم. مذہب کا تعلق خدا کی معرفت سے نہیں, اسے اپنے علم سے سروکار ہے. سب اچھا دین ہے, یہ دنیا کا بہترین ہے. بکواس کی حماقت. چلو یہاں آخری بات پر چلتے ہیں, اور ایک اور بنیادی حصہ ہے وہی 11-15. چلو اور کھیلیں. 7ویں فرشتے نے نرسنگا پھونکا اور آسمان پر بڑی آوازیں بلند ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہتیں ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی بادشاہتیں بن گئی ہیں, اور وہ ابد تک بادشاہی کرے گا. ایک جنگ ہونے والی ہے, کوئی متبادل نہیں ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ہوگا. وہاں سور کا سوال ہاں وہاں ہوگا. کب؟ یہ ہماری پیشین گوئی نہیں ہے. ہم پوری دنیا کو تیار ہوتے دیکھ رہے ہیں. یہ وہ خطہ نہیں ہے. بغاوت کا دماغ پوری دنیا میں ہے. یہ صرف اس گروہ کے ساتھ نہیں ہے جو وہاں ہے, فارس کے اس علاقے کے قریب نہیں, جو پیشن گوئی کے لحاظ سے یاجوج ماجوج میزک توبلسک ہے. بٹلٹ. چنانچہ ان خطوں نے ایک عظیم فوج بنانے کے لیے اتحاد کیا. آج ہر کوئی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے. وہاں میگاڈون, یہ ایک عظیم فوج کے لیے ہے, ایک عظیم جنگ لڑنی ہے, اور رب کو رب کے خلاف چیلنج ہے. بھائی دیکھیں گے کہ رب کا چیلنج کیا ہے. یہ اس طرح کہتا ہے جو مخالفت کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہر چیز سے بلند کرتا ہے جسے خدا کہا جاتا ہے, اور عبادت کا مقصد اس صدی کا خدا ہے. ایک خدا ہے. اس صدی کا خدا بھی جو مجسمے کے پیچھے ہے وہی ہے جو ہر چیز کو ہدایت دے رہا ہے, کیونکہ وہ اپنے لیے عالمی حکومت چاہتا ہے, اور وہ جانتا ہے کہ انسان مرتا ہے, مر جائے گا, اور وہ رکھتا ہے نتائج. حکومت اور پوری دنیا پہلے ہی ایک حکومت رکھنے کا سوچ رہی ہے. میں اس کے خلاف نہیں ہوں. میرا مطلب ہے کہ میں ہر چیز کے حق میں ہوں. تمام پاگل چیزیں جو چل رہی ہیں, میں اب بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں کل گھر پہنچ سکتا ہوں زندہ. میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں. اچھا, بے دین خدا کا انکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں. یہاں ایک زبور ہے, زبور 3 ہے نا, زبور 53. ایک بے وقوف آدمی دیوانے نے کہا وہ وہاں بکثرت ہیں, اس کے دل میں کوئی خدا نہیں ہے. یہ صرف پاگل لوگ ہی نہیں جو یہ کہتے ہیں, کچھ بہت مہذب تیار لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہاں پاگل شخص ذہنی عدم توازن کے لحاظ سے نہیں, وہ پاگل شخص ہے جو ایک قادر مطلق خدا کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے, اور وہ کچھ بھی نہیں, وہ مرنے والا ہے, وہ گزرنے والا ہے.
वो सोचता है कि वो अपनी पागलपन के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारने वाला है। तुम जानते हो क्या? नहीं, इस तरह। लेकिन उस सदी के खुदा ने लोगों के जहनों को अंधा कर दिया है। लोग बेशूर हैं क्योंकि इस सदी का खुदा हर चीज का इंचार्ज है, वो हर चीज के पीछे है, वो लोगों को अंधा कर चुका है। अभी उन्होंने यहां 15 मिनट रखे हैं, बस 10 है। लेकिन मैं सिफारिशात सुनने जा रहा हूं। हमारे पास टेलीविजन हमारे अख्तियार में है, जो कि एक बहुत बड़ा फायदा है। हम इस तावन के शुक्रगुजार हैं। लेकिन आइए यहां चलते हैं। अगर आप बाइबल की इबारतें लें तो आप कायरोस देखेंगे, खुदा का वक्त। आज जो कुछ हो रहा है वो बाइबल में है। मजहब किस चीज का ख्याल रखता है? बकवास की एक बहुत, हाँ, हमाकत, कुछ नहीं कहने को कुछ नहीं है। मेरा ख्याल है कि मैं यहीं रख जाऊंगा, लेकिन एक बड़ी जंग होगी। आइए यहां बाइबल खोलते हैं, अब जंग से निपटते हैं। ज़िक्रिया 14:2, क्या हम उसे पढ़ेंगे? क्योंकि मैं तमाम कौमों को जमा करूंगा। मैं तमाम कौमों को यरूशलेम के खिलाफ लड़ने के लिए जमा करूंगा। ये रब है जो चाहेगा। हम यरूशलेम का दिफा नहीं करेंगे और ना ही यरूशलेम के खिलाफ जाएंगे, ना ही उनके हक में। जो यरूशलेम के हक में है, यरूशलेम उसका है, क्योंकि दुनिया वहां जा रही है और सब कुछ इस तरफ जा रहा है कि ये यरूशलेम है। फिर आप यरूशलेम से पूछते हैं यरूशलेम में क्या है? नहीं, ये न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, ब्राजीलिया, करासिका की तरह है। कोई यरूशलेम नहीं, मियर नहीं, कोई यरूशलेम नहीं। ये इसकी 1000 साला हुकूमत में मसीह का मंसूबा है। वो बैठने वाला है, ये बाइबल के मुताबिक है, ये पेशन गोई है। वो यरूशलेम में तख्त पर बैठने वाला है, क्योंकि वो है मसीहा। ये अल्लाह का मंसूबा है। इसका मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं। अरबों के साथ जिनकी हम इज्जत करते हैं, और वो समझ जाएंगे कि चाहे ये अच्छे के लिए है या नहीं, ये बड़ी बात है, लेकिन वो समझ जाएंगे जैसे पूरी दुनिया है तो एक मुनकसम दुनिया है। ये तकसीम है। यहां हर किसी के सर में कोई रास्ता नहीं है। हमारे यहां एक चर्च का मामला था जो लड़ रहा था। अगर आप बाएं बाजू के लिए फैसला करना चाहते हैं या आप सही बड़े कारोबार के हक के लिए फैसला करेंगे, कोई नहीं जानता कि मसला कहां है। अगर ये दाएं के साथ है, अगर ये बाएं के साथ है, तो यहां देखो, इस वक्त चर्च इसे देना है, ये कुछ और है। इस सब से बाहर हम अजनबी नहीं हैं, किसी के पास उड़ने के लिए पंख नहीं है और मुसीबत को नजरअंदाज कर सकते हैं, नहीं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि जो आने वाला है वो आएगा और ज्यादा देर नहीं लगेगी। बस यही हमारी खुशी है। यहां जो भी आया है ये सुनने के लिए यहां, तो आइए उसे इस तरह डालें। अब यहां हज़गील में चलो अंतियस 4 पढ़ें। जंग किससे होगी? जिस्म के खिलाफ। दुनिया सब इकट्ठे हो जाएंगे, ये वाज़ेह कर दें। यहां गोशत की कोई कीमत नहीं। क्या आप उसे पढ़ना चाहते हैं? हिजकिय्याल आप उसे पढ़ सकते हैं। हिजकील कितने? मसीह की पेशीन गोई से बरसों पहले, और यह यहाँ के चर्च के लिए मुकाशफा की किताब में है। चलो हिजकिय्याल क्या कहता है? ये कहां था? गोशत का जवाल कहां होगा? 29:4। इस्राएल के पहाड़ों पर इस्राएल गिर जाएगा, और आप और सब, आपकी फौजें और वो लोग जो आपके साथ हैं, और शिकारी परिंदे, और हर बाजों के परिंदे और मैदान के जानवर मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगा। ये खुदा की ज़ियाफत है, यीशु की ज़ियाफत। ये चर्च की बेखुदी है, खुदा का नहीं। ये जिस्म का फैसला है। वो हमें दिखाएगा कि गोशत बेकार है। ये अफसोस की बात है कि मैं अपने जिस्म से डरता हूं, लेकिन मैं क्या करूं? ज़िक्रिया 14 और 12 आते हैं। चलो पढ़ते हैं। वो तावन जिससे वो इस दिन लश्करों पर हमला करेगा। क्या आपको इसमें दिलचस्पी है भाइयों? क्या तुम उसे जानते हो? क्या उसमें आपकी दिलचस्पी है? अगर इसमें आपको दिलचस्पी नहीं है तो अपना हाथ उठाएं और मैं आगे बढ़ूंगा। हर कोई मुतजस्सिस है? चलो फिर ज़िक्रिया 14-12 पढ़ो।
और ये ये होगा। वो वबा होगी जिससे खुदावंद इन तमाम कौमों को मारेगा जिन्होंने यरूशलेम के खिलाफ जंग की है। उनका गोशत उनके खड़े होते ही खा जाएगा, उनकी आंखें उनके साकट में सड़ जाएंगी और उनकी जबान उनके मना में सड़ जाएगी। देखें, जान यूना की खुशखबरी इस तरह जाता है। दुनिया खुद नहीं है और ना ही ये है कि जो कुछ दुनिया में है। जिस्म की होश, आंखों की होश और जिंदगी का गुरूर जो जबान है बाप की नहीं, वो जिस्म की मजम्मत करने वाला है। इस अजीम मार्के में वो ये दिखाने वाला है कि गोशत से कुछ फायदा नहीं। वो यूं कहता है, ट्रिब्यून ले आओ, अच्छा बोलने वालों को वहां ले आओ, बार एसोसिएशन ले आओ, सबको यहां ले आओ, मेरे साथ बहस करो। ये खुदा का फैसला है। वो दुनिया के लिए ये नहीं चाहता, लेकिन दुनिया मुहाज आराई में है, ये उसकी तैयारी कर रही है। यहाँ क्या कहा जा रहा है, इस पर अमल करें। ये पेशन गोई है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये किसी ऐसी चीज का सवाल नहीं है जिसे हमने लाने का फैसला किया है। देखते हैं कि क्या आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, क्या आप अर्मगेडन के बारे में बात कर सकते हैं, क्या आपके पास है। नहीं, ये यहाँ है। हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि अर्मगेडन को इस तरह रखना है। वहां है, वहां होगी, एक जगह होगी, वो कहाँ है? ये मिल गया। मेरे भाइयों, दुनिया पेंटिकॉस्ट से खुद को दौर करते हुए मजहब पर इतना रद्दामल क्यों कर रही है? ये जिस्म की विजारतें हैं, जिस्म के इसरार हैं। कौन सा खून है, कौन सा लफ्ज है जिसमें इसरार नहीं है? ये नहीं जानता वो राज जो वहां मौजूद हैं, पैगंबराना जो बुनियाद है। चलो यहाँ देखो, वो वहां अक्ठे होने जा रहे हैं। ये वो शराइत हैं जो आप वहां देख रहे हैं। गोमर, माजूज, तोगरमार, टोबोल्स्क एक ऐसा खुदा है जो रूस, कुछ लेबिया, पूता, वो सब, ये सब इस जंग के लिए इकट्ठे होने जा रहे हैं। बराह करम जंग की जगह दिखाएं। वहां पहाड़ कहेंगे, इधर आओ। और खुदा, हमारा खुदा इंतकाम लेने का खुदा नहीं है, लेकिन इसके पास फैसले हैं। इसके पास बेवफा चर्च के बारे में फैसले हैं, इसके पास वफादार चर्च के बारे में फैसले हैं, इसके पास इन लोगों के बारे में फैसले हैं जो इसके खिलाफ उठते हैं, क्योंकि ये खुद इंसान नहीं है। मैं हूं, ये कहां है? नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको आने के लिए कह रहा हूं। क्या आप अब भी उसे ढूंढ रहे हैं? मेरा काम हो गया, ठीक है, चलो बात यहीं खत्म करते हैं। हमें सरखियां नहीं मिले, देखो क्या शर्म की बात है। चलो, आपके पास कितने मंट हैं? 5 मंट। ये काफी नहीं, मैं बाद में सहाफियों के लिए सरखियां छोड़ूंगा। हाँ, ये 2:30 बजे तक है, इसलिए मैं मजीद तबलीग नहीं करना चाहता। ठीक है, ये खराब हो गया है ना? मैंने क्या कहा? ठीक है। यहां देखो, ज़बूर दो। ज़बूर ये बाइबल की किताबों में से एक है। उसकी पेशन गोई हजरत ईसी अलैहिस्सलाम से 3000 साल पहले की गई थी। क्या आप जानते हैं कि इसमें क्या लिखा है? आइए उसे पढ़ते हैं। आइए ज़बूर की तरफ चलते हैं। ये आज का लम्हा है। ये एक सवाल है। आइए सवालात की तरफ चलते हैं। ज़बूर का सवाल, क्यों? यहां आप यहां रख सकते हैं, लोग क्यों हंगामा कर रहे हैं? दुनिया फसादी है। फसाद का लफ्ज अबरानी में है, उसका माखज हागुज है। जिसका मतलब है नाराज हुजूम। नेक लोगों के खिलाफ शरीरों की तरफ से कार्रवाई की साजिश। जंग के लिए तैयार। जंग के दोनों फरीक तैयार हैं। ज़बूर और ज़बूर देखो ऐसा ही है। क्यों तसव्वुर करें कि अबरानी में लफ्ज हगाज है। ये इंसान के जानवरों के रवैये के बारे में बात कर रहा है। इसमें तकरीब जब ये उकठा होने वाला है, तुम्हें क्या पता है? ये एक जानवर की तरह है। जमात दिमाग को जानवर की तरह काम करता है। और अल्फाज अबरानी की रवायत गर्ज रही है।
गुस्से से किराह रही है, मुश्ताल दरिंदों की तरह खुशी से हर चीज की तदबीर करते हुए एक को मार डालो, दूसरे को मारो, सामने से गुजरो तो ये फौज है जो तैयार है खुदा को लेने के लिए इंसान की हुक्मरानी से। और आदमी माने या ना माने, और साजिश ये है कि वो एक साथ मशूरा लेते हैं, वो एक दूसरे से लड़ सकते हैं। वहां ये वाकई खानदानी कारोबार है। आपने यहां अपने खानदान के साथी से थोड़ी देर में लड़ाई की, वो सब मुंतशिर हो गए और एक दिन का वक्त पूरा खानदान सबको, क्योंकि आपकी एक से लड़ाई हुई है। चलो हम इख्तिताम पर आ रहे हैं और ज़बूर पहली 2 आयत, ये 3 सवालात हैं। लोग फसाद क्यों करते हैं? लोग चीजों का तसव्वुर क्यों करते हैं? और दुनिया के हुक्मरान खुदा और उसके ममसूह के खिलाफ इकट्ठे होते हैं। ये पुराने अहदनामे में है, लेकिन ये मसशुदा है, ये यस्वा है अंजील के खिलाफ। खुशखबरी की सच्चाई दुनिया उसे नहीं चाहती। तो इंसान का ये मिजाज वहां है और उसके नताइज मौजूद हैं। बेवफा चर्च वहां अखाड़ फेंका, तबाह, खत्म हो गया। आप आगे बढ़ सकते हैं और हम यहां बंद कर देंगे। और उम्मीद है भाई समझ गए होंगे। लेकिन आदमी इस वक्त उसके पास खुदा का कलाम है। यहां वो मतन कहते हैं। आइए अगली आयत की तरफ चलते हैं जो उसके बारे में बात कर रही है। इसमें से ऐसी सूरत हाल जिसमें दुनिया बगावत के लिए तैयार है। सुनो, जो सुनना चाहता है वो सुन ले, जो नहीं सुनना चाहता उसे सुनना नहीं है। लेकिन ये ज़हन में रखो, दुनिया मुतफरिक है। और बाइबल का मतन जो यहाँ आता है, मुझे नहीं मालूम कि कोई यहाँ ज़बूर के साथ मेरी मदद कर सकता है। ज़बूर आओ, यस्वा पढ़ें, कुछ करें। ज़बूर दो, यहाँ 2 ज़बूर पढ़ें, सिर्फ पहली आयत पढ़ें, लेकिन वक्त को देखकर उसे सही तरीके से पढ़ें। वक्त को देखो, ज़बूर दो, क्योंकि एजेंट बगावत करते हैं लोग और लोग फजूल चीजों का तस्वुर करते हैं। जमीन के बादशाह उठ खड़े होते हैं। तुम जमीन के हुकूमत, दुनिया उठो, वजीरों मिलकर सबके अपने आप खिलाफ को रब खुदावंद और के उसके खिलाफ मंसूख के खींचते खिलाफ। और अपने ममसूह के खिलाफ। अब ये कहता है कि जो इससे मुत्तफक हैं वो बोलें। यही है, ये कहते हुए चलो उनके बंधन तोड़ दें। और मैं, दुनिया ठीक है, खुदा से कोई ताल्लुक नहीं, चलो उसके साथ बंधन तोड़ते हैं। दूसरा कहता है, वो जो आसमान पर रहता है हंसेगा, मत करो। कहेगा वो इससे चोरी करेगा। चाहना, लेकिन खुदा हंसेगा। वो कह रहा है कि ऐसा नहीं है। मैं इरे चलो, तब वो अपने गुस्से में उनसे बात करेगा और अपने गजब में उनको परेशान कर देगा। लेकिन मैंने अपने बादशाह को अपनी मुकद्दस पहाड़ी सीवन पर मसह किया है। आखिरी क्या है? आखिरी आयत कलमी, ये आखिरी है। खौफ के साथ खुदावंद की खिदमत करो और कांपते हुए खुशी मनाओ। है सबको इंतिबा, खुदा की खिदमत, मोहब्बत और कांपने के साथ, खौफ और कांपने के साथ करो। दूसरी जंग, बेटे को चूम लो, ऐसा ना हो कि वो नाराज हो जाए और तुम रास्ते में ही हलाक हो जाओ जब उसका गजब जल्द भड़क उठेगा। यस्वा को बूसा दो। यहां वो कहता है, मेरे बेटे को चूम लो। जो कुछ मेरे पास है मैंने अपने बेटे को दिया। वो उसे महसूस करना चाहता है। वो चाहता है कि तुम यस्वा को चूमे। वो चाहता है कि तुम उसके साथ मील जोल रखो। वो चाहता है कि तुम उसके इंहिसार में रहो। और वो कहता है कि तुम मेरे जैसे हो। जेकब के साथ भी ऐसा ही था। इसहाक के साथ इसहाक मर रहा था। उसने जेकब को बुलाया। वो जेकब को बरकत देना चाहता था। उसने कहा, जेकब मेरे बेटे को चौम। और फिर वो कहता है, मेरी खुशबू। बेटा रब ने बरकत दी है। आदमी जो यस्वा को चौमने वाला है, उसे रूहुल कुद्स की खुशबू हासिल करनी होगी। अगर उसके दिल में रूहुल कुद्स की खुशबू, मेल जोल की खुशबू नहीं है। खुदा आप सबको खुश रखे। दुनिया बगावत में है, हम रब के अमन नहीं है।